Hello to all. Myself, Dr. Ramandeep Kaur, faculty GMCH. So, in our today's lecture, we are going to discuss about the physiology of labor. So, our today's lecture is basically focused on the labor, the very important topic of the obstetric and gynecology labor. So, in today's lecture, we are going to discuss just about what is the physiology of labor. Before that, we are going to discuss about labor. So, labor is a series of events that takes place in the genital organs in order to expel the viable products of conception through the vagina into outer world. So I'll repeat this definition. So it is a series of events. Series of event means step by step. Like the first step will occur, first the dilatation will occur, then there is a expulsion of the fetal head, then the fetal bodies, and so and so. So in a sequence, all the events will occur. So these events occur in the genital organs in order to expel the viable products of conception through the vagina into the outer world. So World Health Organization says about normal labor. So normal labor is one which is spontaneous in onset, like it starts by its own, and there is a low risk at starting of the labor, and infant is in the vortex position, and after delivery infant and mother are in the good condition. So normal labor is also called as eutosia. So there are the few conditions. If that conditions are present, we can say that the labor is normal. See Raja, basically if the mother comes to us and if she says ki whether I will have a normal delivery or not, we cannot assure her that she will have a normal vaginal delivery. Actually, normal labor is a retrospective diagnosis. Retrospective, like once it has happened, then we can say that it was normal. जैसे डिलीवरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहा, तो हम बोलेंगे कि येस यू हैड नॉर्मल लेबर. So it is a retrospective. So normal labor is called normal if it is spontaneous in onset, like starts by its own, like we need not to induce either by medically or surgically, and at term means between 37 to 42 weeks. Second condition is if the presentation is a vortex. Vortex means if the head is in the lower pole of the uterus and without the undue prolongation. Like when we will discuss about the stages of labor, there we will discuss that the first stage of labor duration is 12 hours, second hour is 2 hours, so and so. Like if the labor is completing in that prescribed time period, so we can say that it is normal. And its natural termination by using either any kind of forceps, we are not using any ventos, like delivery is happening by itself. And last is without any complication which is affecting the mother and child, like कोई भी untoward event नहीं हुआ during the time of labor, like PPH वगैरह या किसी तरह का कोई रप्चर या बच्चे में कुछ एस्फिक्सिया वगैरह. अगर ये सारी कंडीशन रही तो we can say that the labor is normal. Then is abnormal labor, which is called as dystocia. Labor is called as abnormal if it is not spontaneous in onset and not at term, like the vice versa of the normal. Spontaneous नहीं है, term पे नहीं है. Without vortex presentation is not vortex. Next condition would be with prolongation, means labor is prolonged, with prolonged labor, and we are using any kinds of aids to extract or to expel out the fetus. Usage of any aid, any help, and any kind of untoward happening in the either in the mother or either in the fetus, so labor is abnormal. फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू लेबर, अगर आपको याद होगा हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में किया था प्री टर्म लेबर. प्री टर्म लेबर इज अ लेबर विच इज लेस देन which starts at less than 37 weeks of gestation. Another term is parturient. So parturient is a woman who is in labor. So जो मदर लेबर में उसको हम बोलते हैं parturient. Next is parturation. So parturation is a process of
childbirth. It is parturition. And another term is delivery. Delivery is either the expulsion or extraction of the products of conception. It can be by a normal vaginal delivery or by a cesarean section. So याद रखना, in case of elective cesarean section there is no labor. Elective मतलब मदर ने कुछ चूज़ कर लिए, शायद मे बी ब्रीच प्रेजेंटेशन थी या कोई और कॉम्प्लिकेशन थी, हमें बच्चे को खुद by planned cesarean section we are taking out the child from the mother womb. So that is elective cesarean section. So in case of elective cesarean section there is no labor but delivery is by the method of cesarean section. Further we are going to discuss about the 3 P's of normal labor. First is power, second is passage, and third is the passenger. So power is it is a contraction, either the abdominal and the uterine contraction. Contractions are strong enough. इतनी ज़ोर से contraction आ रही है कि they are pushing out the fetus out from the vagina. Another is a passage. Passage is related to pelvis. If there is contracted pelvis or CPD, cephalopelvic disproportion, like such kind of condition, अगर पैसेज मतलब सिंपली अगर रास्ता छोटा हुआ तो फीटल का हेड वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा. एंड थर्ड इज़ अ पैसेंजर. पैसेंजर इज़ रिलेटेड टू द फीटस. अगर बच्चे का हेड ज़्यादा बड़ा, बच्चे का वेट ज़्यादा है, सो इन दैट कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी. सो रिमेंबर देयर आर द 3 P फॉर द नॉर्मल लेबर. फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ लेबर. राजा याद रखना, फेजेस ऑफ लेबर को स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ कंफ्यूज नहीं करना. स्टेजेस ऑफ लेबर्स आर डिफरेंट. स्टेजेस ऑफ लेबर इज अ पार्ट ऑफ फेजेस. सो फेजेस इज बेसिकली 9 month ड्यूरेशन, मीन्स 9 months से लेके टिल द प्यूपेरियम. प्यूपेरियम इज द पीरियड आफ्टर द 6 weeks, मीन्स डिलीवरी के बाद के जो 42 days का टाइम पीरियड उसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम. सो फेजेस ऑफ लेबर सब कुछ इंक्लूड करता फ्रॉम द कंसेप्शन टू द प्यूपेरियम. सो फर्स्ट फेज हमारी होती है यूट्राइन क्यूएसेंस, सेकेंड इज द प्रेपरेशन ऑफ लेबर और ऑनसेट ऑफ लेबर, थर्ड इज स्टेजेस ऑफ लेबर एंड phase 4 is प्यूपेरियम. Now we are going to discuss about the phase 1, that is uterine quiescence. So uterine quiescence, I think from name it is clear, it is a silent stage. Like uterus is in a quiet stage. See राजा ये देखो, ये मैंने यूट्रस बनाया और ये अंदर है फीटस. इट इज़ एट अ मीन्स बहुत स्टार्टिंग पीरियड पे एंड द यूट्रस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. अब आगे एज द प्रेगनेंसी ग्रोज हमारे यूट्रस का साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अंदर ये बच्चा है ये भी बड़ा हो गया. सो देयर इज़ विद द एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज़ hypertrophy of muscles, there is hyperplasia of muscles, and plus there is stretching of the muscles. So ये सब हमारा हो रहा है जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है. सो इन दिस टाइम पीरियड यूट्रस रिमेन्स इन अ साइलेंट स्टेज. सो यूट्रस बिल्कुल ठीक आराम से, बस यूट्रस इज गेटिंग बिगर इन साइज विद द फीटस बिगर इन साइज, बाकी और कोई मूवमेंट अंदर नहीं हो रही है. और ये जो हमारी सर्विक्स है इट इज़ क्लोज. सी इफ इट इज़ अ माउथ ऑफ अ सर्विक्स, ये क्या है, कम्प्लीटली बंद है. हमारी जो सर्विक्स होती है, मुझे याद रखना, सर्विक्स इज कम्पोज्ड ऑफ 10% ऑफ मसल्स एंड रेस्ट ऑल इज कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन. सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज़ कीपिंग द माउथ ऑफ द सर्विक्स क्लोज. ठीक है, जिसके कारण हमारा सर्विक्स पूरे 9 महीने बिल्कुल क्या रहता है, बंद रहता है. देयर इज नो डायलेटेशन ऑकर्स. सो इन शॉर्ट यूट्राइन क्विसेंस फेज इज मेंटेन्ड बाय हार्मोन HCG एंड प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन आई गेस आप लोगों को याद होगा, इट इज़ ए प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन एंड बोथ दीज हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा. सो हमारी पहली स्टेज क्लियर और फेज क्लियर होगी, दैट इज यूट्राइन क्विसेंस. अब अगली हमारी फेज आ रही है फेज 2, दैट इज ऑनसेट ऑफ बर्थ
और लेबर मीन्स इटियोलॉजी ऑफ लेबर। अब क्यों और कैसे लेबर स्टार्ट होगी? देखो राजा, सिंपल सा फंडा है, ऐसे तो नहीं है कि ठीक है एकदम 9 मंथ स्टार्ट हुए बच्चा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले कुछ चेंजेस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक मदर की बॉडी में होनी स्टार्ट होंगी। उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली द चाइल्ड विल कम आउट। सो पहली चीज़, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द इटियोलॉजी और द रीजंस फॉर द ऑनसेट ऑफ बर्थ। लेबर क्यों होती है? 9 महीने के बाद किन चीज़ों के कारण लेबर स्टार्ट होती? पहला चीज़ हमारा है prostaglandins. So remember, prostaglandins are the labor maintaining hormone. Pregnancy maintaining hormone is progesterone and labor maintaining is prostaglandins. हमारा amnion, decidua, chorion, placenta and plus stretching of यूट्रस, ये सब क्या कर रहे हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मुझे आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि पीजीज आर इन्फ्लामेटरी। ये तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ये क्या है? इन्फ्लामेटरी एजेंट्स है। क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी एजेंट्स है, सो दे विल डाइजेस्ट द कनेक्टिव टिश्यू। जो सर्विक्स की कनेक्टिव टिश्यू जिसके कारण सर्विक्स टाइटन थी, उसको क्या करेंगे? दे विल डाइजेस्ट, विच विल लीड टू द सॉफ्ट सर्विक्स, और वी कैन से सॉफ्ट ripened and dilate cervix. So now we can say that biochemically how the ripening occurs. हम ये टर्म यूज़ करते आगे। राजा जी इस चीज़ आज के लेक्चर पर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर लेबर के आपको ये बेसिक समझ में आ गई तो स्टेजेस आपके लिए बहुत इजी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो पूरी लेबर आपको कभी समझ नहीं आएगी। सो बायोकेमिकली हाउ द राइपनिंग मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स occurs. As with the advancement of pregnancy at the end time, there is an increase in water content of cervix. सर्विक्स का वाटर कंटेंट इंक्रीज हुआ, विच विल लीड टू कोलेजन ब्रेक डाउन एंड इट विल लीड टू द राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, पहला रीज़न क्लियर होगा ना आप लोगों के लिए क्यों हमारी लेबर पेन स्टार्ट होती है? फर्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ लेबर मेंटेनिंग हार्मोन जो इसको स्टार्ट करेगा। सेकंड आ रहा है हमारा फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होनी स्टार्ट हुई या फिर सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हुआ, इट विल स्टिमुलेट द फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड। राजे बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, उसने फर्दर बच्चे की एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि देखो मदर की लीकेज ऑफ मीन्स की सिंपल, चलो अभी हमारी स्टार्टिंग है, जैसे सर्विक्स ऐसे माउथ थोड़ा ओपन डायलेट है स्टार्ट हुआ, तो बच्चे के जो बताइए एड्रीनल ग्लैंड था उसको मैसेज मिला कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो गई, कुछ दिक्कत है। सो इट विल लीड्स टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ DHE डाईहाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन प्लस इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। याद रखना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसका लेवल कम होता है, पर अब जैसे क्योंकि कुछ लग रहा है कि कोई डेंजर है तो इसका लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब इसका लेवल इंक्रीज होगा, इट विल प्रिवेंट द डिक्रीज द कन्वर्जन ऑफ फीटल प्रेग्नेलॉन टू प्रोजेस्ट्रॉन। फीटल प्रेग्नेलॉन प्रोजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली डेफिनेटली क्या होगा? लेबर स्टार्ट होगी, जिसके कारण क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। सो क्लियर? सेकंड रीज़न, पहला रीज़न था हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सेकंड रीज़न हमारा हो गया फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आगे हमारा थर्ड रीज़न आ रहा है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन राजे दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो मायोमेट्रियम के,
यूट्रस की लेयर पे, दूसरा वो क्या कर रहा है यूट्रस की सर्विक्स पे, यूट्रस के सर्विक्स पे वो क्या कर रहा है सर्विक्स डायलेशन। सर्विक्स डायलेशन कैसे करा, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया है कि भी कोलेजन को वो क्या कर रहा है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसके कारण सर्विक्स क्या हो रहा है डायलेट हो रहा है। अब दूसरा वो काम कर रहा है हमारे यूट्रस की लेयर पे, पहला कैसे कर रहा है गैप जंक्शन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शन, ये डिस्कस करते हैं पहले। ये देखो राजे हमारा यूट्रस है, ये इसके मायोमेट्रियम, और यहाँ पे जो यूट्रस के ईच मसल फाइबर हैज़ इट्स ओन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। सो ये जो हमारे यूट्रस के मसल्स फाइबर है इसमें क्या है अलग अलग हमारे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है, जिस पे आके ऑक्सीटोसिन काम करता है। सो वी ऑल नो दैट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑलवेज occurs फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। जो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं अगर कॉन्ट्रैक्शन एक सीक्वेंस में ना आए तो राजू तो सर्विक्स डायलेट नहीं होगा, बच्चा बाहर नहीं आएगा। एंड इफ़ द कॉन्ट्रैक्शंस आर कमिंग इन अ इनकोऑर्डिनेटेड मैनर, जो कि हमारी एक एबनॉर्मैलिटी है, हम पार्ट 2 में डिस्कस भी करेंगे, तो फिर वो सर्विक्स को डायलेट नहीं करेगा। सो कॉन्ट्रैक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में आने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी मसल्स होती है इनमें गैप होना स्टार्ट हो जाता है। Catch that. Could you try again? By the way, if you have another request, you don't need to say Siri before you ask it. ये क्यों एक्टिवेट हुई? सो मसल हमारे यूट्रस में देखो राजा ये जो मसल्स फाइबर्स है इनमें गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस क्रिएशन ऑफ द गैप हेल्प्स इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू कम इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। सो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द गैप जंक्शन। सेकेंड इज द ये जो हमारा ईस्ट्रोजन है it stimulates the maternal pituitary gland and which will leads to the secretion of the oxytocin. So estrogen ने पहले तो क्या किया गैप जंक्शन फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करती है, सेकेंड इज द ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिवनेस एंड थर्ड इज द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीज। लाइजोजाइम की राजे डिस्ट्रक्शन हुई विच विल लीड टू द सिक्रेशन ऑफ पीजी। ठीक है, सो हमारा थर्ड फैक्टर हो गया। फर्स्ट फैक्टर था हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकेंड इज द फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज द ईस्ट्रोजन जो हमारा ईस्ट्रोजन कर रहा है। अब अगला हमारा आ गया फोर्थ प्रोजेस्ट्रॉन। सो रिमेंबर प्रोजेस्ट्रॉन इट इज अ pregnancy maintaining hormone. So progesterone plays a very very important role. So under the progesterone राजे याद रखना there is a increased level of DHEA and increased level of cortisol, so which leads to the conversion of the fetal, which inhibits the decrease the conversion of fetal pregnenolone to the progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हुआ डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इट विल लीड टू द स्टिमुलेशन और द इनिशिएशन ऑफ द लेबर। नेक्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन। याद रखना राजे ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए for the contraction of uterus only one hormone is needed and that is oxytocin. So याद रखना for the contraction of the uterus we require the oxytocin. ये एक यूट्रस और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है। ऐसा नहीं है कि राजे ऑक्सीटोसिन अभी मेरे में प्रेजेंट या आप में नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन अभी भी करंटली भी हम सब में प्रेजेंट है, बट ऑक्सीटोसिन हैज़ अ फीचर इट डज नॉट रिएक्ट ऑन अ
प्री टर्म यूट्रस, जैसे प्रेगनेंसी हमारी 8-9 मंथ के पास गई, ये सारे इवेंट्स होने स्टार्ट हो गए, तो यूट्रस में जो हमारे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो ऐसे कम थे, अभी एक हो गए ज़्यादा अमाउंट में, इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट होने स्टार्ट हो गए। ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रहे हैं, सो इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। इसके कारण क्या होगा, हमारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट अनदर रीज़न इज़ द यूट्राइन डिस्टेंशन। यूट्राइन डिस्टेंशन आर सिंपली एग्जाम्पल ऑफ से बैलून। हम लोग बैलून लेते हैं, वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्फ्लेट द बैलून, उसमें हम हवा भरनी स्टार्ट करते हैं, इट विल इन्फ्लेट टू अप टू सम कैपेसिटी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा, इट विल डिफ्लेट। सो यही हाल हमारे यूट्रस का, इट विल ग्रो अप टू ए सर्टेन कैपेसिटी, उसके बाद क्या होगा, द कंटेंट विच इज़ प्रेजेंट इन साइड विल कम आउट। सो ये हमारी होगी अबाउट द ऑनसेट ऑफ द बर्थ। किन रीजन्स के कारण हमारे लेबर पेन स्टार्ट होती है। फर्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकेंड इज फीटोप्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज ईस्ट्रोजन, नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन, फिफ्थ इज ऑक्सीटोसिन एंड लास्ट इज द यूट्राइन डिस्टेंशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी लेबर पेन होनी स्टार्ट होगी। सो उसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हुआ। देन फेज 3 इंक्लूड्स द स्टेजेस ऑफ लेबर। अभी हम क्या कर रहे थे राजा का, थोड़ा सा याद हो कि फेजेस ऑफ द लेबर। तो फर्स्ट फेज थी हमारी यूट्राइन क्यूएसेंस, सेकेंड इज द ऑनसेट ऑफ द बर्थ और प्रेपरेटरी चेंजेस, third is the stages of labor. There are the 4 stages: stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. Stage 1 starts from the full dilatation of the which starts with the true labor pain and ends with the full dilatation of the cervix. Second stage is from the full dilatation of cervix till to the expulsion of the fetus, and third is from the expulsion of fetus to the expulsion of placenta, and fourth is the monitory stage 1 hour after the observation. And हमारी phase 4 क्या होती है, प्यूपेरियम और द यूट्राइन इन्वोल्यूशन फेज। ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ फर्दर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। सो राजे हमेशा याद रखना, द पेस मेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज द कोरोना, एंड द राइट कोरोना इज मोर प्रोमिनेंट देन द right crown, more prominent than the left. So from here the contraction side से start होके it will come in the center. Second feature होता है हमारा fundal dominance. Fundal dominance means contraction will be at the peak in the fundus, means जो maximum intensity होती है वो हमारे fundal area में होती है of the uterine contraction. And third is a regular pattern, means कि with the time there is a increase in frequency and intensity of the uterine contraction. ठीक। Another feature in the uterine contraction physiology is the pain. जैसे अगर किसी भी आप जो मदर लेबर में उसको पूछोगे ना आपको पेन कहाँ पे हो रही है, शी विल से कि मेरे यहाँ पूरे एब्डामन में पेन हो रही है। सो इसका एक रीज़न आज ये है कि भी द यूट्रस इज़ कवर्ड बाय अ पेरिटोनियम, एंड उस पेरिटोनियम को जो नर्व सप्लाई जा रही है, इट इज़ थ्रू द T10 to L1 via inferior hypogastric plexus, जिसके कारण यहाँ से T10 to L1 यहाँ से ये नर्व फाइबर इसको सप्लाई कर रहे हैं यूट्रस की पेरिटोनियम में, और जिसके कारण मदर को पेन पूरे एब्डामन में फील हो रही है। एंड इवेंचुअली मदर विल से कि मुझे बैक एक होनी स्टार्ट होगी, एंड द पेन इज़ गोइंग इनटू द ग्रोइन एरिया टू द थाइज। सो इसका रीज़न क्या होता है, क्यों, इट इज़ ड्यू टू द S2, S3, S4 stimulation by a sacral plexus.
इन सब की स्टिमुलेशन क्या करिए, मदर को पेन प्रोड्यूस करिए। अब पेन की रिलेटेड आज एक क्लिनिकल इम्प्लीकेशन, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। सी आपके पास अगर मदर आए, वो बोले कि हाँ जी कि भी मैं आई वांट एनी काइंड ऑफ पेन रिलीफ, ऐसा होता है कि मदर बोलते हैं कि हाँ मैं मुझे पेन रिलीफ के लिए कुछ चाहिए। इफ़ यू विल गिव लाइक मॉर्फिन, फेनागन, इट विल नॉट इवन टेकन केयर ऑफ 40% ऑफ लेबर। उन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि नर्व ये वाली सप्लाई कर रही हैं, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। सो क्योंकि ये हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं एंड इट विल टेकन केयर ऑफ T10 to L1 प्लस इट विल टेक केयर ऑफ S2, S3 एंड S4। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम कर रहे थे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन हमारे हो गए। सो कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली it can be palpated by placing a hand on the abdomen of the mother. So another we are going to discuss about the intrauterine pressure और tone. So जो इस टाइम पे जो अभी अगर बोलूँगी तो अभी जो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट सेट जो अगर सपोज मेरे यूट्रस की जो टोन होगी वो क्या होगी 2 to 3 mm ऑफ मर्कुरी। सो जैसे मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी और वी कैन से दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन कितनी होगी 10 mm of mercury. When the contractions are painful, at that time the intrauterine pressure is 15 mm of mercury. So इस टाइम पे क्या होता है, contraction हमें palpate होनी स्टार्ट हो जाती है। Like if we are going to place our hand on the abdomen of the mother, तो आपको यूट्रस की प्रॉपर हार्डनिंग फील होगी। So at the cervical dilation वो कितनी होती है 15 mm of mercury in first stage of labor. Intrauterine pressure is 40 to 50 mm of mercury and in second stage it is 100 to 120 mm of mercury. Another concept is a retraction. पहले अब हमने कर ली contraction and second is a retraction. राजीव contraction is the basically it is a temporary reduction in the size of muscles fiber and whereas the retraction is the permanent shortening. It is a permanent shortening of length of muscle fiber, whereas the contraction is the temporary. contraction में ठीक है muscles contract हुई then it will regain its original position, but in retraction muscles एक बार retract होगी it will not regain its original position. So सी सिंपली सपोज इट इज़ यूट्रस, यहाँ पे रिट्रैक्शन होनी स्टार्ट हुई। सो ये क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे जो हमारा अपर यूट्राइन सेगमेंट है उसका साइज वो क्या होता जाएगा, इट विल बिकम स्मॉल. So retraction is a permanent shortening of the length of muscle fiber. So this retraction it basically helps in the first is separation of placenta में ये help करती है. Another is the hemostasis and third is formation of the lower uterine segment. So इसमें ये help करती है. So retraction clear आ जाए, permanent shortening of the muscle fiber. अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगी हूँ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट. ये वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इन द फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, ये वैसे पार्ट है पर यहाँ पे आगे यूज़ होगा तो मैं आपको बताने लगी हूँ. फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सी यहाँ डायग्राम पे देखो, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द सर्विक्स. अब देखो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसे बनता है. सी राजा ये देखो, ये हमारा यूट्रस है. यूट्रस का ये पार्ट क्या है, isthmus. So basically isthmus is a part which is present between body of uterus and cervix. Body of uterus और cervix के बीच में जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, isthmus. और we can say that the part between the anatomical and हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस, उस पार्ट को हम बोलते हैं isthmus. सो
जो वैसे इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, लाइक 2.5 mm होता है जो साइज ऑफ इस्थमस। अब क्या हुआ, जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ी, द फीटस इज गोइंग टू एंटर इनटू द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। जैसे यहाँ पे देखो, फीटस का जो हेड है वो नीचे को आ रहा है, ये लो आप देख रहे हो ना, हाँ बच्चा जैसे अब नीचे को आना स्टार्ट हुआ। सो इससे क्या होगा राजे, जो हमारा अपर सेगमेंट है इसमें क्या हो रही है, देयर इज़ ए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन। इस ऊपर वाले पार्ट में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो नीचे वाले पार्ट में उसमें रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी। सो लाइक विद द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज़ अ रिलैक्सेशन इन द लोअर पार्ट विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड दिस इज अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड दिस इज सर्विक्स। सो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हमारा isthmus होता है, it will convert into the lower uterine segment. So simply we can say that stretching of isthmus leads to formation of lower uterine segment. क्लियर हुआ ये हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। अब एक मिनट बस अब हमारा लास्ट ये टॉपिक है नेचर ऑफ लेबर पेन। ओके कुछ खाओगे मैम? नहीं खाना नहीं है, नहीं एक्चुअली थोड़ा बिहार में ना घर की तरह डाइफोर्ट को के तो कॉफी? नहीं करते कंटिन्यू करते हैं ना फिर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ द लेबर पेन। शायद आप लोगों ने सुना होगा ट्रू लेबर पेन एंड द फॉल्स लेबर पेन, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। सो अब हम करने जा रहे हैं कि जो लेबर की पेन्स होती है उसकी नेचर कैसे होती है। सबसे पहले तो आती है हमारी फॉल्स पेन और द फॉल्स लेबर। इट इज़ मोर कॉमन इन द प्राइमी ग्रेविडा मदर, दोज हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम उनमें ये होगा। एंड सेकेंड, it does not lead to dilatation of cervix। इसके कारण हमारी cervix की dilatation नहीं होगी and it will be relieved by giving the enema और bed rest। ये जब हम अनीमा देंगे और जब बेड रेस्ट देंगे उसके कारण ये क्या होगा, हमारा रिलीव हो जाएगा। सो दिस इज़ ए फॉल्स पेन। फॉल्स पेन ठीक है, मदर को लगेगा कि शायद ये मेरी लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, पर जैसे आप बोलोगे मदर को हाँ जी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें तो उससे ये पेन जो है एलिविएट हो जाएगी। और यूजुअली ये प्राइमरी फर्स्ट टाइम मदर में फील होती है। एंड देन इज़ द प्री लेबर और द प्री मॉनिटरी स्टेज। ट्रू लेबर होने से पहले एक और स्टेज आती है, दैट इज़ प्री लेबर। उसमें पहली चीज़ होती है हमारी लाइटनिंग। लाइटनिंग इज़ अ वेलकम साइन ऑफ लेबर। सो लाइटनिंग यूजुअली इट हैपन्स एट 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू लोअर पोल ऑफ यूट्रस। वो हमारे यूट्रस में अंदर जाना स्टार्ट होगा और इसके कारण क्या होगा, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द फंडल हाइट। सो जैसे ये डायग्राम में देख लो, अभी फंडस ऑफ यूट्रस यहाँ पे इस लेवल पे है। सो इट इज़ पुशिंग प्रेशर ऑन द लंग्स, जिसके कारण मदर को क्या हो रहा है, थोड़ी सी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। अब जैसे 36 वीक्स में द फीटल हेड इज़ कमिंग डाउन, सो it is relieving the pressure which was on the diaphragm or there on the lungs। so जिसके कारण क्या होगा, जैसे वो नीचे को आना स्टार्ट होगा, फंडल हाइट डिक्रीज हुई, it will relieve mother from respiratory distress or which is called as the lightning or the welcome sign of the pregnancy। Lightning मतलब when the presenting part is going to enter in the lower pole of the uterus and it usually happens at the 36 weeks of the pregnancy।
और सेकंड जो प्री लेबर साइन होता है सर्वाइकल चेंजेस, ये हमने सबसे पहले आगे कर लिए. सर्विक्स विल बिकम सॉफ्ट, डायलेट एंड राइपन्ड. सो सर्विक्स क्या होगा, ये सब चेंजेस होगी बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द ट्रू लेबर पेन. अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ट्रू लेबर पेन. ट्रू लेबर पेन क्या होगी, ये दीज आर द painful uterine contraction. It will not relieve by any anemia, any rest, and it will leads to the dilatation of cervix. और इसका एक ये फीचर होता है कि it will increase in the frequency and intensity. जिस तरह की पेन मुझे 1 घंटे पहले हो रही थी, 2 घंटे बाद उससे ज़्यादा सीवियर होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होगी. So these contractions are more felt in the front of the abdomen and radiates towards the thigh. Abdomen में क्यों फील होगी, याद करो पीछे हमें डिस्कस किया था, because of the nerve supply to the peritoneum by a T10 to L1, जिसके कारण मदर को ये पेन फील होगी. एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर द फर्स्ट साइन ऑफ लेबर. यूजुअली मदर को कैसे पता चल रहा है कि कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है फॉर द डिलीवरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन. जब ये लेबर पेन स्टार्ट होगी, शी नोज आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. सेकेंड फीचर ऑफ द ट्रू लेबर पेन इज अ सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेटेशन. राजी. So the uterine contractions which are coming from the top are not only pushing the fetus into lower pole, they are also helping in the effacement and dilatation. So uterine contractions are, Raja, basically uterine contractions are useful or plays a role in effacement and डायलेटेशन. जो हमारी इफेसमेंट और डायलेटेशन में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है रोल प्ले करेगी. सीधा जी ये देखो आप तो डायग्राम में ध्यान से, ये यूट्रस है, ये हो गया अपर यूट्राइन सेगमेंट और ये वाला पार्ट हो गया लोअर, ये वाली चीज़ लोअर यूट्राइन सेगमेंट. अपर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एंड ये हमारा पार्ट हो गया आगे सर्विक्स और नीचे आ गया वेजाइना. सूरज क्या होता है, जो हमारी कंट्रैक्शंस होती है आप लोगों को पता है, इट ऑलवेज कम्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जैसे यहाँ से स्टार्ट होगी टॉप से एंड इट विल गोज इनटू द बॉटम, नीचे की तरफ जाएगी विद द फंडल डोमिनेंस. सो फंडल एरिया में सबसे ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी होगी. सो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं राजे, देखो इस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, there is contraction and retraction both occurring in the upper uterine segment. So इस पार्ट में क्या हो रहा है, contractions और retraction. contraction के साथ साथ retraction भी हो रही है, मसल फाइबर्स की जो लेंथ हो रही है वो shortened हो रही है. So this contraction and retraction is pulling pressure on the लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इट इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ पुल. जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है इस पे ये एक तरह का क्या कर रही है, क्रिएटिंग अ पुल ऑन लोअर यूट्राइन सेगमेंट. जब ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे पुल कर रही है तो जो हमारा सर्विक्स क्या हो रहा है, सर्विक्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट. जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे जो पुल हो रहा है, पुल क्यों हो रहा है, जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव अपर यूट्राइन सेगमेंट इज पुटिंग अ पुल ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा सर्विक्स है it is getting incorporated into the lower pole of uterus which is called as the effacement. effacement क्या बोलते हैं, जब हमारा cervix merge हो जाता है lower uterine segment में, that is called as the effacement. अगर अब ये second diagram में देखो राजे, इसमें cervix देखो ये पार्ट क्लियर हो रहा था, जैसे बच्चा नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हुई, सर्विक्स क्या होगा, इसमें मर्ज हो गया इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज द इफेसमेंट. इफेसमेंट इज व्हेन द सर्विक्स मर्ज इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो बच्चा जो है नीचे को लोअर पोल ऑफ यूट्रस जा रहा है, सो इट विल लीड्स टू द डायलेटेशन.
सो सेकेंड फीचर हमारा क्या हो गया, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेटेशन. सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ द ट्रू लेबर पेन इज अ शो. सो राजी ये देखो, ये हमारा क्या है, यूट्रस, एंड दिस इज अ सर्विक्स. सो जैसे सर्विक्स हमारा इस टाइम पे क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज. सो देयर इज अ म्यूकस प्लग inside the cervix, which is secreted by म्यूकस ग्लैंड. जो सर्वाइकल की म्यूकस ग्लैंड है वो क्या करी, ऐसे ही म्यूकस प्लग जनरेट करे. इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव which helps in the prevention of the transfer of the infection from the lower part to the upper part. सो जैसे ही हमारी सर्विक्स क्या हुई, डायलेट होनी स्टार्ट हुई, सी सर्विक्स डायलेट हुई. सो ये म्यूकस प्लग क्या है, इट विल कम आउट. जब ये म्यूकस प्लग बाहर आएगा तो साथ में क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड भी आएगा. सो ब्लड मिक्स्ड विद म्यूकस प्लग इज नोन एज शो. ठीक है. सो ट्रू यूट्राइन कंट्रैक्शन का एक फीचर क्या होगा हमारा, show. And last feature of the true uterine contraction is a formation of the bag of the membrane. See देखो राजे, ऐसे बच्चा है, there is a amnion chorion which is attached to the decidua. So जैसे हमारा cervix dilate होना start हुआ, जो amniotic fluid का कुछ part है, it will comes before the presenting part और कुछ पीछे रह जाएगा. So the amount of the amniotic fluid which is before the presenting part is called as a forewater, और जो पीछे का उसको हम क्या बोलते हैं, hind water. So there is a formation of the bag of the water. So with this our topic of the nature of labor pain, that is a true labor pain, premonitory sign and false labor pain, finished. Thank you very much.